guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this problem I'm going to discuss upon the topic of triggers and function. So first we will study about triggers. So first let me just drop this database trigger underscore, and I have created that to make you understand the topic of triggers. So I have then created this table, employees and employee changes log. Okay, so there's already an object named employees in the database. So drop table employees. I think we haven't used this database, right? Use trigger and then we are creating the table employees in this database and the creating the table employee changes log. So what for what thing we use triggers? So for example, we have employee table with columns like employee ID, first name, last name, and department. And we have four records of four employee IDs in this column, and where employee ID column is a primary key of the table. And we want to and if we are adding doing more operations in the primary key like updating, inserting, and deleting records in the employee key. And so, like for example, we want to store this operation like what after creating the employees table, whatever operations we are implementing in the employees table, we want to save that operations in another table like as log. So then in that case we use triggers. Like for example, after these four records, I want to update the second employee ID record. Then like I have done the operation of updation, so that will log into this. That operation will log into this employees change log table. And for example, I want to remove the record of the employee ID too. Then I can also remove it from the employee table, and it will get recorded in the employees changes log table like this. And if we are updating the if we are inserting employee ID 4 5 record in the employees table, then also it will get updated in the employees changes log table. So here the log like the data type of, we have put the condition of identity 1 1 in the log ID so that it will automatically get updating as one. Like first, if first log ID is 1, then it will go above one step, then the second log ID will be true and the third will be 3. So like consecutive, like if we have written identity 1 2, then it will be like log ID 1, log ID 3, log ID 5, like this. Got it? And the change state function also have the constraint of default get date. Like whatever the like whenever the data get inserted in the employees change log table, like whatever the current date time whatever the date time is, whatever like जो भी उस टाइम पे मेरी डेट या जो भी मेरा उस टाइम पे डेट या टाइम हो रहा होगा, वही वाला डेट या टाइम मेरा उस चेंज डेट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये एम्प्लॉय चेंज लॉग टेबल हो गई। Since whatever I have told you, like there are three kind of trigger: insert trigger, update trigger, and delete trigger. So we need to remember this syntax also. Like concept, I think you have understood. लाइक कि जो भी ऑपरेशन हम एम्प्लॉय टेबल में करेंगे, हम चाहते हैं कि वो ऑपरेशन रिकॉर्ड हो जाए एम्प्लॉय चेंजेस लॉग टेबल में, तो उसके लिए हम ट्रिगर्स यूज करते हैं। ओके, सो ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर का सिस्टम क्या होता है? इट इज क्वाइट सिमिलर टू द सिंटेक्स ऑफ store procedure. It's like create triggers, this trigger name on the table what for which we can to create for insert, update या delete. Since I have told you there are three kind of trigger: insert, update and delete. So and अभी हम insert trigger पढ़ रहे हैं, तो टेबल का नाम लिखने के बाद हमें ये भी लिखना है कि हम इंसर्ट के लिए कर रहे हैं, अपडेट के लिए कर रहे हैं, डिलीट के लिए कर रहे हैं। एंड उसके बाद वही जैसे स्टोर प्रोसीजर के सिंटेक्स होता है ना, एज बिगिन, and after that we'll add this compound insert into this table, select I dot employee, and the table name should be inserted I only, and the column name are I dot employee ID. So ये वाली जो चीज है ये भी हार्ड कोड है, इंसर्टेड नाम की ही टेबल रखनी है। और उसके बाद सेलेक्ट आई डॉट एम्प्लॉय, इसी टेबल में से लेने हैं सारे कॉलम। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया सिंटेक्स। एक बार लिख के भी देख लेते हैं कि जिससे हमें समझ आ जाए। क्रिएट ट्रिगर
स्पेस ट्रिगर नेम ऑन जिस टेबल पे बना रहे हैं हम एम्प्लॉय टेबल फॉर इंसर्ट एज begin insert into employees table insert into employee changes log empid first name last name department new first name new last name and department पर मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हमें एक स्टेटस का कॉलम भी बनाना चाहिए तभी तो हमें पता लगेगा कि इंसर्ट हो रहा है अपडेट हो रहा है डिलीट हो रहा है तभी तो उसका फायदा है क्या कहते हो जैसे इंसर्ट वाला ट्रिगर है उसमें भी हमें एक स्टेटस इसमें हमने मतलब एग्जांपल जो था उसमें नहीं बना रखा था पर मेरे हिसाब से बनना चाहिए तभी जाके कुछ लॉजिकल हो रहा है तभी तो हम एम्प्लॉय चेंजेस लॉग टेबल में देख के बता पाएंगे कि ये इंसर्टेड का ट्रिगर था कि मतलब जो भी डेटा तो आ ही जाएगा पर ये इंसर्ट हो क्या अपडेट हो क्या डिलीट हो क्या ये कैसे पता लगेगा हमें ये तो हमें स्टेटस कॉलम से पता चलेगा ना सो इसीलिए इसको भी रखना जरूरी है सबने ये ट्रिगर बना दिया सिंटेक्स देख लिया न्यू फर्स्ट नेम न्यू लास्ट नेम डिपार्टमेंट values select from inserted I select I dot empid comma emp dot first name comma I dot emp first name I dot emp last name comma I dot department ये जो आई के बाद कॉलम है सारे एम्प्लॉय टेबल के कॉलम है कॉमा इंसर्टेड ठीक है ना अब ये हो गया अब यहाँ पे एक लास्ट में एक कॉलम भी बना सकते हैं हम यहाँ पे स्टेटस का as begin and then end so ये हो गया हमारा कंप्लीट ट्रिगर ओके नाउ विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस कमांड ट्रिगर हो गया उसके बाद जब हम इसको चलाएंगे तो वो अपने आप अगर हम एम्प्लॉय चेंज लॉग टेबल में देखेंगे तो ये रिकॉर्ड जो है वो एम्प्लॉय चेंजेस लॉग स्टेटस का कॉलम बस मैंने समझाने के लिए बताया एंड वेर कैर 50 और कोई यूज नहीं है स्टेटस के कॉलम का मतलब मुझे लगा कि लॉजिकली ये भी होना चाहिए बस इसीलिए so here now we will drop table employees and also we will drop table employee
changes log we created this table, and after that we are creating this insert trigger, and now we are doing the operation of insert into employees table, then it will get also, so this trigger will work and employee change log also have this. Now similarly for the update trigger, the syntax is also similar. It is similar, exactly similar. Status column I can add here. Status updated, update. Now we'll do the update operation on the employees table, and जेन का डिपार्टमेंट अगर हमने मार्केटिंग कर दिया है, तो अब इसमें देखेंगे हम कि जेन का डिपार्टमेंट मार्केटिंग हो गया, ये चीज अपडेट हो गई है। बस एक डिलीटेड ट्रिगर में थोड़ा अलग है। इंसर्ट और अपडेटेड ट्रिगर में हम इंसर्टेड टेबल का यूज करते हैं, बस डिलीट वाले ट्रिगर में हम डिलीटेड टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। एक मिनट, इसमें मैंने स्टेटस का कॉलम नहीं बनाया ना, एक बार। ड्रॉप ट्रिगर, स्पेस ट्रिगर का नाम क्या है, TRG एम्प्लॉयज डिलीट, EMPLOYEES डिलीट। फिर उसके बाद हमने ट्रिगर क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिलीट कर दिया है, एम्प्लॉय आईडी जहाँ बना है उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है, तो ये इसमें भी डिलीट हो गया होगा, है ना। यस, इसमें आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टेटस का कॉलम नहीं डाला, डिलीट, इसलिए ना लाया है। यहाँ ये कर दिया, इसके लिए ट्रिगर वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। उसके बाद फिर से डिलीट करा रिकॉर्ड, तो भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया ये एम्प्लॉय चेंजेस लॉक टेबल में। एम्प्लॉय टेबल से रिकॉर्ड कैसे गायब हो गए हैं? लगता है यहाँ से फिर से ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। उस समय हम डिलीट करेंगे। पहले ट्रिगर का ऑपरेशन, अगर हमने ट्रिगर बना दिया है, पहले मतलब अगर हमने फिर
लेकिन उसके बाद अगर हमने ट्रिगर पहले बना दिया है, उसके बाद ट्रिगर बना दिया, अब उसके बाद हमने एम्प्लॉय ट्रिगर एक बना दिया, तो अब क्या होगा, जब भी हम इसमें से कुछ डिलीट करेंगे तो अपने आप ट्रिगर हम बना के रख देते हैं, उसके बाद कोई ऑपरेशन हो जाता है तो फिर वो अपने आप लॉग हो जाएगा। हमने डिलीट किया तो फिर अब ये इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। Okay, so it has got recorded. Now I think you have got that. मतलब यही है, पहले से हम कुछ टेबलों पे ट्रिगर बना देते हैं, उसके बाद अगर जब हम जिससे हम अगर फिर से हम इंसर्ट का अपडेट का डिलीट का ऑपरेशन चलाए उस टेबल पे, जैसे कि एम्प्लॉयज टेबल पे, तो एम्प्लॉय चेंजेस लॉग में वो रिकॉर्ड हो जाए। यही है ट्रिगर का कंसेप्ट। अब एक बार फंक्शंस भी देख लेते हैं। Show me the simplest examples of functions in SQL. जो हम खुद से बनाते हैं वो फंक्शन। स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड concat of two columns उनका। Is simplest example because square of a number and concat of two columns का, two string columns का, इनका ही दिखाना है बस। सो इसका भी ट्रिगर सो इसका भी जो सिंटेक्स है थोड़ा थोड़ा स्टोर प्रोसेसर का ट्रिगर इनके सिंटेक्स जैसा ही है। बस इसमें ना हम वो पैरामीटर डिफाइन करने के बाद रिटर्न्स कीवर्ड और एक दो रिटर्न्स और रिटर्न कीवर्ड, एक तो रिटर्न कीवर्ड बिगिन और एंड के बीच में आएगा और एक रिटर्न्स कीवर्ड मेरा पैरामीटर डिफाइन करने के बाद आएगा। ठीक है ना, दो चीजें हैं बस इसमें। और डीबीओ डॉट करके फंक्शन का नाम देना है, जैसे कि फंक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सो इसमें लिखेंगे हम क्रिएट फंक्शन स्क्वायर वन एट द रेट ए इंटीजर returns int as begin return। एक यहाँ पे आ जाएगा और बस एक यहाँ पे आएगा ये रिटर्न एट द रेट इसी का यूज करना है ना, तो एट द रेट ए इंटू एट द रेट ए and so this is the example of a function in SQL. So how can we use this? Select square one थ्री, तो ये थ्री का स्क्वायर दे देगा। अब ऐसे दो चार फंक्शन और बनाते हैं। सॉरी, डीबीओ डॉट स्क्वायर वन।
square to डीबीओ डॉट ही करना पड़ेगा यहाँ पर भी। ऐसे एडिशन ऑफ टू नंबर का ही फंक्शन बनाओ, एडिशन ऑफ make please ऐसे please make the function of addition of two numbers. So how we will add two numbers? We'll add two number at create function add one at the rate a integer comma at the rate b integer returns रिटर्न्स में ये नहीं कि दोनों है दोनों को, बस एक ही जो भी रिटर्न करेंगे उसकी डेटा टाइप किया गया, रिटर्न्स इंटीजर एज बिगिन रिटर्न at the rate a plus at the rate b and create function dbo dot select dbo dot add one 390। उसके बाद subtraction of two numbers का भी फंक्शन बना देता है, ऐसे subtraction of two numbers, two number like we'll made a function on subtraction of two numbers, so we'll create a function like create function sub underscore one at the rate a comma at the rate b, and then after this we will write, sorry, this should be dbo dot at the rate a at the rate b. It will return integer data type as begin. After this we will write return, after this we will write return, after this we will write return at the rate a minus at the rate b and ओके। हमने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन ही नहीं करे, एट द रेट ए इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करनी तो जरूरी है ना। रिटर्न्स इंटीजर एज बिगिन रिटर्न एट द रेट ए माइनस एट द रेट बी, सही तो है। अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स आता है ना, रिटर्न्स एंड देन रिटर्न। उसके बाद हमने क्या करना है, सिलेक्ट डीबीओ डॉट सब अंडरस्कोर वन 78 कॉमा 10 तो 78 माइनस 10 करके देगा। ऐसे कंकैटिनेशन ऑफ नेम का फंक्शन बना देते हैं, कंकैटिनेशन ऑफ नेम, क्रिएट फंक्शन dbo dot full underscore name dbo dot full name। उसके पैरामीटर्स में देने हमें एट द रेट फर्स्ट नेम varchar 10
comma at the rate second name, varchar 10. आफ्टर दिस क्रिएट हो गया फंक्शन, उसके लिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, रिटर्न्स varchar 10 varchar 50। ओके, उसके बाद एज बिगिन रिटर्न concat at the rate first comma space at the rate last and the rate first and then second last। उसके बाद हम ये फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, सिलेक्ट dbo डॉट फुल नेम कुछ भी लाइक राम गुप्ता। तो वे क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर कंकैट करके हमें वापस दे देगा। बस इसी तरीके से हो गया फंक्शन में, यही था बस। फंक्शन में सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देते हैं और स्टोर प्रोसीजर ऐसा नहीं कि सिंगल ही वैल्यू रिटर्न करके देगा, यही डिफरेंस है फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर में। चलो, that's it for today guys, we'll meet in another video with another problem. Until then, goodbye, and please do hit the like button, share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.